स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें, मोदी कैबिनेट ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है। मूल जनगणना में ही जातीय गणना होगी। बुधवार को हुई सीसीपीए की बैठक में मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। कांग्रेस ने प्रस्ताव के बावजूद सिर्फ सर्वे कराया। कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इसका उपयोग किया है। कई राज्यों ने जातिगत जनगणना की है, जिससे भ्रांति फैली। जाति की गणना मूल जनगणना में शामिल होनी चाहिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं, जहां जाति जनगणना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मोदी कैबिनेट ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है। अब मूल जनगणना के साथ ही होगी जनगणना। बता दें, मोदी कैबिनेट का यह बड़ा फैसला है। बात करें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीधा निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर। बताते चले, उन्होंने कहा 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना की बात कही थी। कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। बताते चले, बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, कैबिनेट ने जातीय जनगणना census. Caste was not included in all the conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys. I am repeating the word surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok
तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके बीच लेकर आए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का हमने आपको बयान भी सुनाया, क्या कुछ उन्होंने कहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जाति जनगणना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बता दें, मोदी सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। एक लंबे अरसे से विपक्ष की भी अगर बात करें तो जातीय जनगणना की मांग लगातार उठाई जा रही थी। इसके साथ ही बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना की बात कही थी, कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जाति जनगणना केवल केंद्र का विषय है। ये बड़ी जानकारी हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा, हमारा सामाजिक ताना बाना प्रभावित ना हो, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति जनगणना मूल जनगणना में ही शामिल होगी। कास्ट सेंसस को लेकर लंबे समय से मांग उठाई जा रही थी। बात करें तो कांग्रेस भी लगातार इसकी मांग कर रही थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बोल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके बीच लेकर आए हैं, जहां दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने वाली है। बता दें, जातीय जनगणना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बात करें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमाम जानकारी साझा की और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं, जहां जातीय जनगणना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां जातीय जनगणना को मंजूरी मिल गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे थे। सीसीपीए की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बात करें तो एक लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसी खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारी सहयोगी रुचि शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं रुचि, आखिरकार क्या कुछ जानकारी है। एक बात करें तो एक लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग विपक्ष के द्वारा भी उठाई जा रही थी और एक लंबे इंतजार के बाद जातीय जनगणना को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बात करें तो इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ ताजा अपडेट रुचि? इसके अतिरिक्त जो तथाकथित रूप से अगड़े भी थे उनको भी 10% हम लोगों ने आरक्षण दिया। बिल्कुल आदित्य, देखिए जातिगत जनगणना की मांग जिस तरीके से उठ रही थी और पक्ष हो विपक्ष हो, कई बार कई राज्यों ने इस पर निर्णय लिया भी था, लेकिन केंद्र पर यह आरोप लगते थे कि जातिगत जनगणना के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं है। तो अब ये बातें क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई कि जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है। और देखिए, ये जो कहा जाता था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अब जब केंद्र का यह निर्णय जातिगत जनगणना के पक्ष में है, तो देखिए जो विपक्षी केंद्र से जो विपक्षी पार्टी आरोप यह लगाती थी कि जातिगत जनगणना के पक्ष में ये नहीं है, केंद्र नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना कराए, नहीं चाहती है कि जिसके जितनी भागीदारी है यानी उनकी उतनी हिस्सेदारी हो पाए। लेकिन अब जब केंद्र ने ये बातें कह दी हैं, तब यह भी माना जा सकता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसका सराहना करेंगी। अब उनके पास ये क्वेश्चन रेज नहीं होगा कि जातिगत जनगणना वाले जो डिसीजन है, चाहे वो विधानसभा के चुनावों से सभी राज्यों में ये इम्प्लीमेंट होगा, चूंकि केंद्र का डिसीजन है। और जब जातिगत जनगणना होंगी तो एक सही पॉपुलेशन जो है, किसकी कितनी आबादी है जाति के आधार पर, वो सामने आ जाएगी कि किन्हें कितना योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, कितना लाभ पहुंच रहा है। तो ये देखिए एक बड़ा डिसीजन और बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला, बहुत बड़ा डिसीजन यहां माना जा रहा है, एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि लंबे समय से मांग भी चल रही थी और जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष केंद्र पर आरोप भी इस मामले को लेकर लगा रहा था। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे थे हमारी
सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़ी। अब सीधा रुख कर लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी मामले पर। अमित, क्या कुछ जानकारी है? एक बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट ने यहां ले लिया है। बात करें तो एक लंबे समय से इस मामले को लेकर जो मांग है उठाई जा रही थी, यहां तक कि राहुल गांधी ने इसे चुनावी मुद्दा भी उठाया था और केंद्र पर आरोप भी लगते रहे। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है, एक बड़ी बात यह है कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, ऐसे तनावपूर्ण समय में जो मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, तो विपक्ष यहां पर यह भी सवाल उठा रही है कि यह भी ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। क्या कुछ ताजा अपडेट अमित? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक मांग ये नहीं थी, इसको कह सकते हैं कि ये राजनीतिक कह सकते हैं कि एक हथकंडा अपनाया जा रहा था, खासकर जातिगत सर्वे को लेकर। आपने देखा कि इसकी मांग जो है वो बिहार से उठी थी। बिहार में सभी पार्टी एक होकर उस समय मौजूदा जो सरकार एनडीए की है, उस समय भी एनडीए की सरकार थी और सभी लोग जो है वो दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व से बात किए थे, बजाबते जो प्रधानमंत्री के डेलीगेशन उनसे बातचीत हुई थी कि भाई पूरे देश में जो है वो जातिगत सर्वे जो है कराया जाए, जातिगत जनगणना करवाया जाए। लेकिन केंद्र से भी ऐसा बिहार के यूनिट कह रही है कि भाई केंद्र से भी इसकी बात हुई थी कि ठीक है ऐसा कराया जाएगा, लेकिन लंबे अंतराल के बाद जो है नहीं कराया गया था। लेकिन ये ऐसे समय पर इसकी सूचना मिल रही है जब पाकिस्तान खासकर आतंकवाद को लेकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार या पूरे देश का रुख स्पष्ट है कि भाई आतंक का खात्मा कैसे होगा। उस समय कैबिनेट की बैठक होती है और निर्णय लिया जाता है कि अब जो है वो केंद्र सरकार जातिगत जनगणना जो है वो पूरे देश में कराएगी। देखिए एक बात और केंद्र सरकार कह रही है कि ये देखिए कभी भी ये स्टेट यूनिट का मसला नहीं था, ये केंद्र का ये मसला था। चूंकि जातिगत जनगणना जो है वो केंद्र ही करा सकता है। हालांकि कुछ राज्यों में जरूर हुआ, लेकिन जो डाटा है वो एक राज्य यानी कि बिहार से ही डाटा आ पाया है। जो डाटा जारी किया है वो बिहार सरकार ने जारी किया कि जो कास्ट इक्वेशन क्या कैसे समीकरण है, किसकी कितनी मतलब जाति की संख्या है, वो बिहार ने बाकायदा जारी किया। लेकिन अब सीधे तौर पर कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब जो है वो पूरे देश में जातिगत जनगणना होगा, वो भी ऐसे मौके पर जब पूरा देश पाकिस्तान पर कैसे आतंकी हमले का जवाब हो इसका इंतजार कर रहा है और इसको लेकर लगातार बैठक भी चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पास एक मुद्दा जरूर मिल गया है। बिल्कुल हमें तो बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे थे, जहां सीसीपीए की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि लंबे समय से विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा था कि जातीय जनगणना की जाए। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार वो राज्य था जिसने जातीय जनगणना कराई और उसके बाद भी पक्ष विपक्ष के जो सियासी बयानबाजी थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।